Hello everyone, today we will discuss GPS number 11 and the number of questions which we will discuss today are written there. So let's start with the first question. An old person moves on a semicircular track of radius 40 meter during a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of the person. So this man is walking on a semicircular track जिसका रेडियस 40 मीटर दे रखा है. रेडियस कितना दे रखा है? 40 मीटर. So this is point A and this is point B. ये इस सर्कुलर ट्रैक के इस एंड से उस एंड में जाता है. ठीक है, तो you need to find the distance and the displacement. Distance क्या हो जाएगा? Distance ये वाला path हो जाएगा, the path which he has taken. So distance will be equal to pi r 3.14 into radius is 40. So this comes out to be 126 meter approximately. And the displacement क्या हो जाएगा? It is the shortest distance between the final position and initial position. What is the shortest distance between his final position and initial position? This straight line distance. ये कितना हो जाएगा? 80 मीटर के बराबर हो जाएगा, 2r. So S will be equal to 2r. That is equal to 80 meter. Okay. Next question. Question number 2. The distance travelled by a particle in time t is given by S is equal to 2.5 t square. 2.5 t square. Find the average speed of the particle during the time 0 to 5 and instantaneous at 5. So what will be the average speed? Average speed हो जाएगी total distance covered divided by total time taken. ठीक है, तो average speed calculate करने के लिए total distance covered कितना हो जाएगा? S की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जा रही है. एट t इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू कितनी थी? एट t इक्वल टू 0 S was equal to 0 and at t equal to 5 ये कितना था? 2.5 into 25, right? $62.5 था. सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक कितना टाइम लगेगा? 5. सो इट विल बी 12.5 मीटर. ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 12.5 मीटर. इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 5t. इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड. t इक्वल टू 5 पुट कर दो तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. A table clock has its minute hand 4 centimeter long. So the length is given to be 4 centimeter. Find the average velocity of the tip of the minute hand between 6 am to 6:30 am. A part between 6 am to 6:30. AM में मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 12 में होगा. ठीक है, 6 AM में मिनट हैंड 12 में होगा और 6:30 में कहाँ पे होगा? 6 पे होगा. दिस लेंथ इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर. सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड. इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है.
तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और टाइम कितना लगा 30 मिनट, 30 इंटू 60 seconds. So 8 centimeter divided by 30 into 60 second, this comes out to be 4.4 into 10 to the power minus 3 centimeter per second. Okay? B part. Between 6 am to 6:30 pm. 6 am से 6:30 pm में क्या होगा, सेम सिचुएशन होगी. 6 am में तो 12 में होगा मिनट हैंड, और 6:30 pm में 6 में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा. डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 सेंटीमीटर ओनली, बट टाइम विल चेंज. इस केस में टाइम कितना था 30 मिनट था, इस केस में टाइम कितना हो जाएगा, ये 6 am की बात है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 6 am और उसके बाद 6:30 pm. तो 6 am से लेके 6 pm तक तो 12 आवर हो जाते हैं, प्लस 30 मिनट मोर, प्लस 30 मिनट्स मोर. सो इट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 60 प्लस 30 मिनट्स मोर. हाउ मच इट विल बी, 720 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 750 मिनट्स. 750 मिनट्स हो जाएगा. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 750 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. 750 इंटू 60 सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 to the power -4 centimeter per second. Okay? Next is question number 5. A particle having initial velocity u moves with a constant acceleration a for a time t. Find the displacement of the particle in last 1 second. Evaluate it for u equal to 5 meter per second, a equal to 2 and t equal to 10. Okay, so initial velocity दे रखी है u और एक्सेलरेशन दे रखा है a, ठीक है. तो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा. नाउ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड. हमें लास्ट 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सपोज इसने टी टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर टाइम टी, तो t माइनस 1 टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा. t की वैल्यू t माइनस 1 रख दो, u t माइनस 1 प्लस हाफ 8 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है. So distance covered by the end of t minus 1 will be ut minus u plus half a t square minus 2t plus 1. So this will be equal to ut minus u plus half a t square minus t minus at plus a by 2. इतना डिस्टेंस कवर करेगा t माइनस 1 सेकेंड के लिए, ठीक है. सपोज पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां था, एट t इक्वल टू t पार्टिकल यहां पे था, a पोजीशन से स्टार्ट किया, पार्टिकल यहां पे था, और उसके 1 सेकेंड पहले दैट इज एट t इक्वल टू t माइनस 1, एट t इक्वल टू t माइनस 1 पार्टिकल इस डिस्टेंस पे था, पॉइंट C में था, ठीक है.
और ये जो डिस्टेंस है ये है सपोज x और ये डिस्टेंस है y। तो लास्ट 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? लास्ट 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल in last 1 second would be how much? Y minus x, right? That is S2, that is ST minus ST minus 1. इतना डिस्टेंस कवर करेगा. So this will be equal to how much? ut plus half at square minus ut minus u plus half at square minus at plus a by 2. So this is ut. U. So it will be how much? ut plus half at square minus ut plus u minus half at square plus at minus a by 2. This will be equal to how much? U plus at minus a by 2. So the distance covered for the last 1 second is u plus at minus a by 2. How much distance? 1 second. Yeah. Evaluate it for u equal to 5, a equal to 2 and t equal to 10. Put the values. u को 5 डालो, a को कितना डालना है? 2 into t half. t is half second. No, t is 10 into 10 minus a by 2. That is 2 by 2. तो ये कितना हो जाएगा? 25 minus 1, that is 24. So answer will be 24 meter. Okay? An old person moves on a semicircular track of radius 40 meter during a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of a person. तो रेडियस दे रखा है कितना? 40 मीटर. यहाँ से पॉइंट A, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, सेमी सर्कुलर ट्रैक है एंड ही मूव्ड टिल द अदर एंड. ठीक है, इसका रेडियस है 40 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 मीटर. तो यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहले क्या निकालना है? डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पाथ कवर्ड. ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू पाई आर. दैट कम्स आउट टू बी 22/7 इंटू आर इज 40. सो इट कम्स आउट टू बी 126 मीटर. एंड द सेकेंड थिंग इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. Shortest distance between the final position and initial position is 80 meter. So displacement will be how much? 80 meter. Next is question number 9. Sorry, question number 7. A particle moves in the xy plane with a constant acceleration of 1.5 meter per second square in the direction making an angle of 37 degree with the x-axis. So this is xy plane. पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है दैट इज मेकिंग 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. and theta is 37 degree. At t equal to 0, the particle is at the origin and its velocity is 8 meter per second. At t equal to 0, this is 0, 0 and its initial velocity is given to be how much? 8 meter per second.
8 meter per second. So along the x axis 8 meter per second I cap होगा ये, ठीक है. Along the x axis उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है और y axis में along y axis उसकी स्पीड 0 है. Find the velocity and the position of the time at t equal to 4 seconds. So एक्सेलरेशन x एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो along x एक्सिस उसका एक्सेलरेशन होगा a cos 37 और along y एक्सिस उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a sin 37. ठीक है, दोनों कंपोनेंट में सॉल्व करते हैं. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, टाइम 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है a sin 37, a is 1.5, this is 1.5 into sin 37. Sin 37 is how much? 4 by 5. Sorry, 3 by 5. Yeah, 3 by 5. And cos 37 is 4 by 5. Horizontal direction में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 4 एंड a is given to be a cos 37, that is 1.5 cos 37 is 4 by 5. So you need to calculate the final velocity and the position of the particle. Final velocity कितनी हो जाएगी? v is equal to u plus at. So y direction में vy will be equal to at, that is 1.5 into 3 by 5 into t, 4. Okay, solve this, you will get 3 and 3.6 मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी. और Vx विल बी इक्वल टू u प्लस 80, 8 प्लस 80. 1.5 को 15 by 10 लिख सकते हैं, a into 4 by 5 into t, that is 4. So this is 3 4s are 12 and 12 into 4 48, 4.8 12.8, 12.8 मीटर पर सेकेंड. Vx, Vy है 3.6 मीटर पर सेकेंड, Vx है 12.8 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टोटल? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3.6 स्क्वायर प्लस 12.8 स्क्वायर. अंडर रूट 3.6 स्क्वायर प्लस 12.8 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 13.3 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. पोजीशन निकालने के लिए y कितना हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर. y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दिस इज हाफ, एक्सेलरेशन इज 15 by 10 इंटू 3 by 5 इंटू t स्क्वायर, that is 60. After 4 seconds पूछा है. So this is how much? 3 3s are 9, 7.2 मीटर. y में हो जाएगा 7.2 मीटर और x कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगेन ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ux में है 8 इंटू टाइम t 4 प्लस हाफ, a is 15 by 10 into 4 by 5 into 60. So this will be 3 8 32 plus 12 into 8 by 10. So this is 32 plus 9.6. So this comes out to be 41.6 मीटर. ठीक है, तो फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी? x, y. फाइनल हो जाएगा
x comma y, that is 41.6 comma 7.2. This will be the final position, and final velocity 13.3 meter per second. Okay. Next is question number 9. A swimmer can swim in still water at a rate 4 km per hour if he swims in a river flowing at 3 km per hour and keeps his direction with respect to water perpendicular to the current. Find his velocity with respect to the ground. So, रिवर करंट दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, राइट. स्पीड ऑफ रिवर करंट है 3 किलोमीटर पर आवर. सपोज मैन की वेलोसिटी कुछ इस साइड है u. स्टिल वाटर में मैन की वेलोसिटी जो है वो कुछ इस साइड है, मेकिंग सम एंगल थीटा. यहाँ से कुछ थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है. तो ऊपर की तरफ हो जाएगी u cos थीटा और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी u sin थीटा, ठीक है. देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ ही स्विम्स इन अ रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड कीप्स हिज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट, फाइंड हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, फॉर अ ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए वो जो पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं, जो स्विमर है वो परपेंडिकुलरली जाता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है. उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्राउंड ऑब्जर्वर जो जब देख रहा है तो उसे ये स्विमर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट. हॉरिजॉन्टली उसकी कोई स्पीड नहीं है. तो फॉर दैट टू हैपन, u sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 3. u sin थीटा 3 के बराबर होना चाहिए. सो sin थीटा कितना होना चाहिए, 3/4. sin थीटा 3/4. तो u cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, u cos थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी इक्वल टू u cos थीटा. ओके. So u cos theta will be 4 into under root of 1 minus sin square theta, that is 9/60. So this will be 4 into root 7/4. So this will be root 7. So v will be equal to root 7 meter. This is the answer. Root 7 meter. Okay. Next question. Question number 10. A man is walking on a level road at a speed of 3 km per hour. Speed of man is given to be 3 km per hour. And raindrops fall vertically with a speed of 4 km per hour. Speed of rain 4 km per hour. So find the velocity of raindrops with respect to the man. Velocity of raindrops with respect to man. नीचे की तरफ 4 km per hour. Is raindrops, and the man is approaching with speed of 3 km per hour. With respect to man निकालना है तो क्या करें, पीछे की तरफ 3 km per hour, तो इसमें भी पीछे की तरफ 3 km per hour. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 9 + 14, 3 square + 4 square, 9 + 14, that will be 5 km per hour. So answer will be 5 km per hour.